Hello everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. In this video, we will be covering the important current affairs for 6th of July 2025. First question is, which company has recently got green light from Space to launch India's first private satellite broadband service? Is it Anand Tech, Starlink, Jio Telecom or Meta? The right answer for this is Anand Tech. It's a Hyderabad-based company, private company, that has got the green light from Space, Indian National Space Promotion and Authorization Center. So the right answer is option A, Anand Tech. What is the theme of the International Day of Cooperatives 2025 observed on 5th of July? International Day of Cooperatives is celebrated, let me write it here, celebrated every year on the first Saturday of July. This year it was 5th of July, and the theme for the International Day of Cooperatives 2025 was Cooperatives Building a Better Future for All. Moving forward, what is the name of the new AI-powered system that RBI has instructed banks to adopt in for real-time fraud monitoring? तो इसका नेम बताना है कि कौन सा AI पावर्ड सिस्टम है RBI ने जो बैंक्स को डायरेक्शन दी है कि इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए. Is it Bharat Secure Net? Is it Vigil AI? Is it Fraud Risk Intelligence FRA system or Digital Sentinel? It's not Bharat Secure Net, not Vigil AI. It's neither Digital Sentinel. The right answer is Fraud Risk Intelligence System. Fraud Risk Intelligence System has been developed by Department of Telecommunications, and RBI has instructed all banks, small banks, payment banks like Paytm or Airtel Payments Bank, all these banks have been instructed to adopt this new AI-powered system. The Union Cabinet recently approved the Employment-Linked Incentive ELI scheme with an outlay of 99,446 crores. What is the primary objective of this scheme? ELI scheme जो यहाँ पे रहेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस स्कीम को जो अप्लाई करेगा दैट विल बी EPFO. स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की. तो हमें बताना है इस स्कीम के बारे में पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है. Is it A, to provide free skill training to unemployed youth? Is it B, to promote exports through tax rebates? Or C, to create formal employment by incentivizing new hiring in the private sector? Or D, to provide guaranteed jobs in rural areas? जब तक अब इसका सही आंसर गेस कर देते मैं इस स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ. ELI स्कीम जो है ये जो भी अब 1 अगस्त के बाद हायरिंग होगी उसमें जो भी कंपनी किसी भी न्यू एम्प्लॉय को हायर करेगी 1 अगस्त के बाद तो उनको 3,000 पर मंथ मिलेगा एक नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉय 6 मंथ्स तक उस कंपनी में रहता है. और अगर कोई एम्प्लॉय 12 मंथ्स तक किसी कंपनी में रहता है तो उसको 6 मंथ्स पे 7,500 मिलेंगे एंड आफ्टर 12 मंथ्स कंप्लीशन 7,500 और मिल जाएंगे. ये स्कीम रहेगी 2 सालों के लिए. 3,000 पर मंथ एक कंपनी को मिलेगा जो किसी भी नए एम्प्लॉय को हायर करता है, और जो एम्प्लॉय 6 मंथ तक रहेगा उसको 7,500 पहले 6 मंथ्स के बाद और 7,500 आफ्टर 12 मंथ्स. ये होगा अप्लाई थ्रू EPFO. तो इसका सही आंसर है टू क्रिएट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बाय इंसेंटिवाइजिंग न्यू हायरिंग इन द प्राइवेट सेक्टर. ऑप्शन C. Mission Ehsaas recently in news in Jammu and Kashmir primarily aims at. Mission Ehsaas जो recently news में था तो ये इसका primarily aim क्या है? Eradication of rural unemployment through self-help groups. This is not the aim of Mission Ehsaas. Restoration of traditional water bodies and ecological heritage. This is the aim of Mission Ehsaas. It is actually Nagin Lakes Conservation Organization NLCO, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
उन्हीं का ये मिशन एहसास है, एंड इसका फेज़ फोर्थ लॉन्च किया गया था रिसेंटली बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। तो इसीलिए न्यूज़ में था, मिशन एहसास जो है इट एम्स एट रेस्टोरिंग ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड इकोलॉजिकल हेरिटेज। According to World Bank's latest report, which rank does India hold in terms of income equality globally? वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कि इंडिया की क्या रैंक है इन इनकम इक्वालिटी। इज़ इट फर्स्ट, इज़ इट फोर्थ, इज़ इट 10th और 25th? द राइट आंसर इज़ फोर्थ। इंडियाज़ रैंक इज़ फोर्थ। वर्ल्ड बैंक जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉर इनकम इक्वालिटी, इसमें एक इंडेक्स होता है जिसे हम कीनी इंडेक्स कहते हैं। सिंपल टर्म्स में मानिए आप 0 to 100 होता है इसका स्कोर। अगर किसी कंट्री को 100 स्कोर आता है तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और अगर स्कोर 0 आता है तो मीन्स इट्स परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट इन दैट कंट्री। इंडिया का स्कोर अराउंड 25 था, सो 25 to 30 इज़ मॉडरेट इनइक्वालिटी। इंडिया से आगे स्लोवाक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया है और बेलारूस है। ये 3 कंट्रीज़ इंडिया से आगे हैं। इंडिया इज़ रैंक्ड फोर्थ इन दिस in terms of income inequality. Which of the Indian state is set to launch its first skin bank on July 15th? जुलाई 15th को लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज न्यूज़ में था तो फर्स्ट स्किन बैंक क्या होगा? अगर कभी किसी को बर्न्स होते हैं या कभी किसी को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए स्किन जो है यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा इस स्किन बैंक में, और ये लॉन्च होगा ऑन July 15th इन द स्टेट ऑफ केरला, तिरुवनंतपुरम। केरला में लॉन्च होगा ऑन July 15 विच इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स प्लास्टिक सर्जरी डे। July 15 तो केरला में ये लॉन्च होगा इन तिरुवनंतपुरम। Which campaign was recently launched by Employees State Insurance Corporation to expand the coverage of social security benefits to more workers? तो कौन सी कैंपेन ऐसी लॉन्च की थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने? उसका आपको बताना है, नाम बताना है। तो उसका नाम जो है दैट इज़ स्प्री 2025। स्प्री स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट्री पब्लिसिटी रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट एक्सरसाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं स्मॉल बिजनेसेस के, उनको स्टेट इंश्योरेंस ने अपने इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में लाने की कोशिश की है अंडर द कैंपेन स्प्री 2025। Where was the foundation stone of India's first national cooperative university laid by Mr. Amit Shah? आपको बताना है कि फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे डाला गया फॉर द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। इज उत्तर प्रदेश, इज इट गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश? द राइट आंसर इज गुजरात, आनंद गुजरात। यहाँ पे आपको पता भी होगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक कोऑपरेटिव है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स ऑफ द कंट्री, जिसको फाउंड किया था त्रिभुवन दास पटेल एंड वर्गीस कुरियन जी ने। इस अमूल कॉरपोरेशन को फाउंड किया था आनंद में। तो यहाँ ही पे अब नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनेगी। वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड से भी रिलेट किया जाता है। सो दैट वाज गुजरात, जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लेके आ गया था नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के लिए। So that's it. Thank you for connecting. See you in the next video.